Good morning, students. This is your MS subject of class 2nd, and we are going to start this lesson. Be grateful to God. It's your MS subject of class 2nd. So let's start this. Be grateful to God. The beautiful world where we live is a creation of God. It was wonderful, natural things. We are able to enjoy the wonderful things because God has gifted us with life, body, soul, and different sense organs. The beautiful world where we live is a creation of God. इस जिस सुंदर संसार में हम रहते हैं वो भगवान का बनाया हुआ है, भगवान का क्रिएट किया हुआ है. And it has wonderful natural things. And in this world, it has wonderful natural things. यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और अच्छी नेचुरल चीज़ें हैं जिस संसार में हम रहते हैं. We are able to enjoy the wonderful things because God has gifted us with life, body, soul and different sense organs. हम इन चीज़ों को इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि भगवान ने हमें क्या दिया है, भगवान ने हमें गिफ्ट किया है क्या, एक अच्छा शरीर, जीवन, आत्मा और डिफरेंट सेंस ऑर्गन जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इन्हें हम इंजॉय कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस क्रिएशन. ओके, हियर इज अ प्रेयर. गॉड मेड द सन and God made the trees. God made the mountains and God made me. Thank you, O God, for the sun and the trees, for making the mountains and for making me. It's a very true. जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान ने किन किन चीज़ों को बनाया और हमें उनके लिए क्यों इतना ग्रेटफुल होना चाहिए. यहाँ बहुत ही साफ लिखा है कि God made the sun and God made the tree. भगवान ने सूरज बनाया है, पेड़ को बनाया है, भगवान ने माउंटेन्स को भी बनाया है और भगवान ने हमें भी बनाया है. सो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर द सन एंड द ट्रीज एंड मेकिंग द माउंटेन्स एंड फॉर मेकिंग मी. यस, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. You should always remain grateful to God. We should always remain. हमें हमेशा भगवान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें बनाया. You must admire and keep the gifts of nature clean and beauty. आपको हमेशा एडमायर करना चाहिए, आपको हमेशा प्रशंसा करना चाहिए और आपको जो भगवान ने आपको एक नेचुरल गिफ्ट दिया है नेचर का, उसे हमें हमेशा उसको अच्छे से रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए. क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं भगवान के दिए इस प्राकृतिक गिफ्ट को, जो भगवान ने प्रकृति दी उसे हमें हमेशा साफ सुथरा और उसे उसके सबसे बेस्ट वर्जन में रखना चाहिए. ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड. और हमेशा हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए. ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. वी शुड ट्रस्ट हिम. हिम मीन्स यहाँ भगवान के बारे में कहा है, हमें उन पर पूर्णतः विश्वास करना चाहिए. थैंक हिम बाय वे ऑफ प्रेयर. और हम कैसे भगवान को अपना थैंक दे सकते हैं, उन्हें पहुंचा सकते हैं, बाय द वे ऑफ प्रेयर. प्रेयर के माध्यम से हम भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे फिर एक स्टोरी दी है, गॉड इज सुप्रीम. ओके, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड द स्टोरी. सी हियर. इट वाज मॉरल्स पीरियड. The teachers taught a lesson about God. After the lesson was finished, a child asked, "Ma'am, where should we pray to God?" The teacher replied, "God is present everywhere. He is omnipresent. Just think of God and He will be with you. So you can pray to God anywhere. However, the place should be neat and clean." Okay, ma'am, how powerful is God? The teacher replied, God is the most powerful. He is omnipotent. When He saves you, nobody can harm you. However, when He punishes someone,
nobody can save that person. So you all should always act in a way that please God. Ma'am, does God know us? Asks a little girl. Yes, God knows everything and everybody. He is omniscient. He is all-knowing. Nobody in this world is a stranger to God. You cannot hide anything from God. God and bad deeds, good and bad deeds of all the people are known to Him. So, you all should try to cultivate goodness in your words and actions. The bell rang and the teacher went out of the class. The children said, "Thank you, ma'am." Okay? So, let's explain. I'm just going to explain this in Hindi. Okay? God is supreme. भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है. सब कुछ उसे पता है. It was a moral period. The teacher taught a lesson about God. ये मॉडल का पीरियड था, क्लास थी, एक जगह क्लास चलती है. एंड टीचर वॉज टीचिंग MS मॉडल साइंस. तो आफ्टर द क्लास वॉज फिनिश्ड, अ चाइल्ड आस्क्ड, मैम, वेयर शुड वी प्रे टू गॉड? हम भगवान की पूजा कहाँ कर सकते हैं? देन द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने आंसर दिया दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. भगवान हर जगह प्रेजेंट रहते हैं. ही इज ओमनी प्रेजेंट. वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं. जस्ट थिंक ऑफ गॉड एंड ही विल बी विथ यू. आप जैसे ही भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान आपके साथ रहेंगे. सो यू कैन प्रे टू गॉड एनीवेयर. इसलिए आप भगवान की पूजा कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, दैट शुड बी नीट एंड क्लीन. ओके? देन अनदर चाइल्ड आस्क्स, मैम, हाउ पावरफुल इज गॉड? भगवान कितने शक्तिशाली हैं? तो मैम ने आंसर दिया, गॉड इज़ द मोस्ट पावरफुल. गॉड्स, भगवान जो हैं, सॉरी, भगवान इट इज़ नॉट गॉड्स, इट इज़ ओनली गॉड. गॉड इज़ मोस्ट पावरफुल. वो सर्वशक्तिमान है. ही इज़ ऑमनीपोटेंट. ओके? ही सेव्स यू, नोबडी कैन हार्म यू. अगर वो आपको बचाना चाहते हैं तो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता. और अगर आपको वो पनिश करना चाहेंगे तो कोई उसे बचा नहीं सकता. सो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट. ओके? सो इसलिए आपको हमेशा अब जो काम आप करें अच्छे तरीके से करना चाहिए. ठीक है? you all should always act in a way that please God. आप ऐसा काम करिए जिससे भगवान खुश रहे, किसी को दुखी मत करिए. ठीक है? अनदर चाइल्ड आस्क्स, मैम, डज गॉड नो अस? क्या भगवान हमें जानते हैं? तो टीचर रिप्लाइड, गॉड नोज एवरीथिंग एंड एवरीबडी. भगवान सभी को जानते हैं और सब कुछ जानते हैं. ही इज ऑमनिसेंट, ही इज ऑल नोइंग. वो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञाता हैं. नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज अ स्ट्रेंजर टू गॉड. इस संसार में रहने वाला कोई भी भगवान के लिए स्ट्रेंजर नहीं है. यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड. और आप भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं. गुड एंड बैड डीड्स ऑल द पीपल आर नोइंग टू हिम. गुड एंड बैड डीड्स ऑफ ऑल द पीपल आर नोन टू हिम. आपके द्वारा किया गया अच्छा काम और बुरा काम सब कुछ भगवान जानते हैं. ठीक है? Children, you should understand that God is present everywhere. ठीक है? आपको ये जानना चाहिए कि भगवान हर जगह उपलब्ध रहते हैं. भगवान हर जगह प्रेजेंट रहते हैं. He is the most powerful and knows everything. वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञाता. He knows everything. You should surrender yourself at the feet of God. और हमें अपने आप को भगवान के समक्ष, भगवान के पैरों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए. Be completely devoted to Him in your prayer. और हमें अपनी प्रेयर से अपने आप को उनके प्रति डिवोटेड कर देना चाहिए. ठीक है? You should also learn to say thanks to other people. और हमें भगवान के साथ साथ लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए. कहने का मतलब ये है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान हर जगह उपलब्ध रहते हैं और भगवान सबसे शक्तिमान है. तो हमें
कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। हमें अगर उनको थैंक्स कहना है तो हम अपने प्रेयर के माध्यम से उन्हें थैंक्स कह सकते हैं। अगर हम भगवान के प्रति डिवोटेड हैं तो हमारे जो भी काम हम करते हैं वो सब भी अच्छे होने चाहिए। अगर हम भगवान को मानते हैं यानी कि हमारे जो काम हैं वो अच्छे हैं और उससे हम किसी को दुखी नहीं करते हैं। ऐसे करके हम भगवान के डियर बन सकते हैं और भगवान ने जो कुछ भी रचना सृष्टि इस संसार के लिए किया है वो उनका क्रिएट किया हुआ है और वो हमारे लिए एक क्या है, उपहार है, गिफ्ट है। तो हमें कभी भी उसे खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा जिस रूप में भगवान ने उन्हें हमें उपलब्ध कराया है उसको हम और अच्छे तरीके से संवार के सुंदर बना के रखें। यही हमारे लिए उनके प्रति एक हमारा डिवोशन होगा। ठीक है, तो भगवान ने जो कुछ दिया है उसे हम अच्छे तरीके से रखें और उनके प्रति ग्रेटफुल रहें।